be fine if you are ready to work. Okay, so far we have discussed in 2 classes this topic called types of matrices. हम already पढ़ चुके हैं, right? All of the types we have discussed, right? Identity matrix, null matrix, idempotent, nilpotent, right? Okay, strictly triangular, if you remember all of these types. When I am saying, right, is the idea flashing through your mind, right? If the idea is flashing through your mind, right, you are studying well. Okay, various types we have discussed. And then the second thing that we have discussed from the official NDA syllabus is operations on matrices, right? This also we have covered. In this we have covered topic called addition, subtraction, and the key hero, which is multiplication. And in multiplication we have already covered a most important rule, CR rule. और अकेले CR रूल पर ही बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, सिर्फ CR रूल पर, है ना? फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रो, है ना? यू कैन एलिमिनेट यूजिंग CR रूल. ओके, आई विल शो यू ऑल ऑफ देम. और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आई टोल्ड यू. अपार्ट फ्रॉम दिस what have I studied, what have we studied actually yesterday? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट? हम ट्रांसपोज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाए सर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वी हैव डन ऑल ऑफ दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस I told you a hell lot of things, right? If you remember, Hermitian matrix, skew Hermitian matrix, transpose, conjugate, right? What not, right? It was a roller coaster class yesterday. You should not miss the class. The recording is already available. I hope you all are having the backup channel whereby you will be getting the recorded sessions of all our classes. Till 9th of May, everything is free for everyone. After that, the recorded classes will only be accessible to the batch members in an unlisted format. ओके, सो डैगर आई ऑलरेडी टोल्ड यू. डैगर मीन्स क्या होता है? डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज भी लेना है आपको. क्या लेना है? ट्रांसपोज भी लेना है, प्लस आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेना है. मतलब ट्रांसपोज भी लेना है और कॉन्जुगेट भी लेना है. आप कॉम्प्लेक्स हटा भी देंगे, लेकिन 2 बात याद रखिए कि ट्रांसपोज भी लेना है और कॉन्जुगेट भी लेना है. और डैगर को डिनोट कैसे करते हैं? ए डैगर. लेकिन डैगर शायद ही आपसे पूछे, क्योंकि डैगर इज समथिंग दैट वी यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स, राइट? आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा हर्मिशियन क्या होता है. आपसे क्या पूछेगा? हर्मिशियन. तो इधर देखो, हर्मिशियन क्या होगा बताओ? एनीवन? हर्मिशियन conjugate of transpose of any matrix. Conjugate transpose is equals yes. to So either I can do this. Either I can take the transpose and then take the conjugate, right? I can do that also. I can take the transpose and then take the conjugate if it comes equal to a. If it comes equal to a, then it is Hermitian. And what is skew Hermitian? So if I talk about skew Hermitian, then again same thing, a transpose, then this, and this is minus a, right? Okay, now tell me other thing. जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसका जो डायगोनल एंट्री होता है, जो डायगोनल पे एलिमेंट होता है, वो कैसा नंबर होना चाहिए? रियल सर. कैसा नंबर होना चाहिए? रियल सर. रियल नंबर होना चाहिए. वेरी गुड यार. एंड जो स्क्यू हर्मिशियन होता है उसका जो डायगोनल एंट्री होता है वो कैसा होना चाहिए? इमेजिनरी जीरो. या तो इमेजिनरी हो जाए सर, या तो इमेजिनरी हो जाए, या तो जीरो हो जाए. ओके, इसको जरा हम याद रखेंगे. हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन को भी हम याद रखेंगे. ओके, इसके अलावा ऑर्थोगोनल याद है क्या? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा A transpose equals to A inverse. ओके. डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 है. ओके ओके. Sir, if A transpose equals to identity matrix, yes, then very that good. matrix is called orthogonal. If A into A transpose is equal to identity matrix, then that matrix, देखो सबने सब बता दिया. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, राइट? A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये भी एक केस है. ए इनवर्स, ओके, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स. ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सर कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? आइडेंटिटी. इधर सुनो, देखो 2 इंटू 1/2 क्या आता है? आइडेंटिटी, राइट? 2 इंटू 1/2 मतलब 2 को उसके इन्वर्स से गुना करने पर क्या आता है? आइडेंटिटी आता है. उसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुना करने पर क्या आता है? आइडेंटिटी आता है, राइट? ओके, सो ए को ए ट्रांसपोज से करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि ए को तो ए इन्वर्स से करने पे आता है, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? ए इन्वर्स के. और जो है, जो सर आपने बताया कि ए स्क्वायर जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट आपको ये कैसे नहीं याद आता सर?
कल हमने इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो +1 हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। ये भी प्रॉपर्टी सर हमारा किसका होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ही होता है, राइट। तो आपको सारी चीज़ें याद आनी चाहिए। ऑल राइट। Yes, sir. Yes, sir. बाकी other things that we have discussed, will leave up to you, right? We'll discuss in a short while. Now let me come to the agenda for today, right? Let me come to you and discuss you the agenda for today, which is these topics. We'll be discussing in great detail about inverse of a matrix. Okay. We'll be covering the topic called determinants, and then also the properties of determinants. This is our agenda, right? Means I am just telling you these are the next topics, right? अगर आज हो पाया तो आज, लेकिन I will try to cover maximum portion today, है ना, and जो बच जाएगा उसको, but will not compromise with the quality and the concept, right? Because one shot पढ़ाना होगा तो कभी भी बोल देना मेरे को, I can complete whole NDA syllabus in 5 days, right? Just give me 5 days and I will complete the whole syllabus. I have already done it one time. You can watch the video on YouTube, right? But for this batch, let us not compromise with the concepts. Okay, so inverse of a matrix, determinants and properties of matrix, this is what we are going to discuss today. Okay, now let me quickly come to this portion. Okay, this is your doubt session. एक एक करके, अगर कल एक्चुअली मैंने डाउट लिखा था, राइट, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कौन सा डाउट है एक बार बता दो इसमें फिर से एक बार। मैं लेट मी होल्ड ऑन देयर, लेट मी टेक माय डायरी। आपका डाउट मैंने कल नोट किया था। तो स्टार्टिंग में क्या किया करेंगे, हर क्लास के स्टार्टिंग में विल बी टेकिंग डाउट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, एनी काइंड ऑफ डाउट्स फ्रॉम DAQ। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, आज जो फार्मूला टेस्ट लिया था हमने यही था, इसका भी डाउट। सो अराउंड 15 मिनट्स इन द स्टार्टिंग विल बी गिविंग टू दैट। ओके, एंड उसी डाउट के थ्रू आई वांट टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी स्टडीड। तो वो आपका डाउट और कंबाइंड रिवीजन सेशन हो जाएगा, रिलेट सेशन। तो अच्छे से पढ़ के आना सब कुछ, ताकि उसमें सब कुछ याद रहे। तो उसी में मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। तो नो सेपरेट रिवीजन सेशन इज रिक्वायर्ड। तो उसी में हम वो दोनों कर लेंगे, एंड उसके बाद विल बी स्टार्टिंग, है ना, विथ द एक्चुअल एजेंडा फॉर द टुडे। इज इट फाइन फॉर यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. उस तरह से कर रहे होंगे। ओके, जस्ट होल्ड ऑन देयर। ओके, द डाउट वाज क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। स्टार्ट करते हैं डाउट डिस्कशन से, राइट। दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम टॉकिंग टू यू ऑल 14-15, हाउ मेनी आर ऑफ यू, राइट, so some energy, right, you are all young blood, right, so that should reflect in your personality, and aura. So we are going to discuss all those doubts that you told me, right. We already discussed question number 30. I hope now it is clear. Let me show you question number 30. This is question number 30. जिनका भी था कल, किनका था, क्लियर हो गया, बताओ। आर यू देयर मैम, और यू आर नॉट देयर? यू ट्राइड सॉल्विंग इट, और डू आई नीड टू एलेबरेट अगेन? सो यू आर नॉट देयर आई थिंक। और किसी का है, इज देयर समवन इन द क्लास हु जिसको 30 में डाउट हो? मेरा सर कल मैं नहीं था। ओके, कल की रिकॉर्डिंग सेशन में मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे करना है, ठीक है। देखो एक बार जल्दी से हिंट दे देता हूँ, ये LHS वाला पार्ट है, राइट। ओके, और यार अगर कल के सेशन में ना आया करो तो रिकॉर्डिंग देख के आया करो, राइट, सो डैट कि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। ओके, LHS क्या है, I+A। तो I कैसे लिखेंगे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सर। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 1 1, यहाँ हो जाएगा 0 0। A बताइए, A क्या है, A क्वेश्चन में गिवन है 0 माइनस tan α/2, उसके बाद tan α/2, और फिर क्या होगा 0, राइट। इस दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करके क्या आएगा 1, बोलिए 1 और 0 1 0, और माइनस tan α/2 tan α/2, फिर होगा यहाँ पे tan α/2, फिर यहाँ पे होगा 1। ये आपका LHS आ गया। ये क्या आ गया, LHS। अब आपको RHS निकालना है सर, यानी कि ये पूरा पार्ट। तो ये पूरा पार्ट निकालने के लिए आप ऑलरेडी I-A क्लियरली निकाल सकते हैं, राइट। I रख दीजिएगा, A भी आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपको I-A आ जाएगा।
अब रहा बात, आपको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये वाला पोर्शन सॉल्व करने के लिए ही यहीं पे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, बस इस वाले पोर्शन के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले पोर्शन को? इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए सर हम यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। एंड आई एम टेलिंग यू एवरीवन, राइट, trigonometric formula are very important. They are the heart of mathematics, right? It is coming in trigonometry, it is coming in ITF, it is coming in differentiation calculus, and then it is coming everywhere, right? Literally everywhere, differential equation. So please go and remember all the trigonometric formula that are there. I've already provided you this formula sheet. You can find it somewhere, right, in the Telegram channel, right? This is a neat and clean formula sheet. It will, you know, give you a list of comprehensive list of all the formula that are there, and a basic list. Apart from this, whatever is missing, I will be telling you separately. Okay, so this was question number 30. एक मिनट, क्या हाउ कम ये हट कैसे गया? एक मिनट रुक जाओ, दो PDF है ना। सो इसमें क्या करना है आपको, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा सर। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये होता है, राइट। डोंट आस्क मी क्यों होता है, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट, ओके, दैट विल सी सेपरेटली व्हेन वी कम टू ट्रिगोनोमेट्री। स्टिल इफ आई टेल यू व्हाट इज दैट, आपको फॉर्मूला याद करना है, इसलिए चुपचाप सिर्फ फॉर्मूला याद करो। सिर्फ मेरे से पूछो क्या है, कॉस पता है आपको, 2 थीटा पता है, एंगल सब पता है, हो गया काम खत्म। ओके, अब 2 किलो के लिए कल सिखाया था कि अगर 2 kg के लिए इधर 1 kg है तो यहाँ 1 kg के लिए कितना होगा? अगर इधर हम 1 kg कर दे तो इधर कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सिंपल। तो प्लीज़ सर कॉस अल्फा को पुट कर दीजिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए क्या पुट करना है। कॉस अल्फा को 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये कॉस अल्फा की जगह यहाँ भी पुट कर दीजिएगा, यहाँ भी। फिर आपको साइन का बता देता हूँ। साइन क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है और 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, आपको फॉर्मूला याद है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताओ tan 2 थीटा क्या होता है? जिसको याद है बताओ, tan 2 थीटा। 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। tan 3 थीटा बताओ एनीवन? लेट मी टेल यू, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एंड डोंट वरी, राइट, आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, डोंट वरी। दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग FST। सो प्लीज़ हम्बली अपीयर, राइट, एंड बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट करिए फॉर्मूला स्ट्रेंथ टेस्ट में, राइट। और क्लास मत मिस करिए। अगर क्लास मिस कर रहे हैं तो रिवीजन सेशन देखिए, राइट। आपको डेफिनेटली आपका अपना नाम भूल जाएंगे पर फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, दैट आई प्रॉमिस यू, ओके। बट इफ़ यू डू नॉट पुट एफर्ट आई कैन नॉट हेल्प यू, राइट, नो बडी कैन हेल्प यू देन, ओके। tan 3 थीटा, उसके बाद यहाँ से आप cos 3 थीटा भी याद कर सकते हैं। cos 3 थीटा आपका होता है, बोलिए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसके बाद आप साइन थीटा भी याद कर सकते हैं। साइन 3 थीटा होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट, ओके। एंड यू कैन गो ऑन एंड ऑन tan 2 थीटा, राइट। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a माइनस बी। तो वो आपको यहाँ फॉर्मूले सेट में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू गो एंड रिमेंबर दैट, ओके। तो साइन 2 थीटा ये होता है। तो अगर हम 1 kg के लिए करेंगे सर तो क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा हमारा आएगा, जस्ट अ मिनट, विल बी 2 tan थीटा बाई 2, ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑल राइट, आई होप आपके समझ में आया हो। तो साइन अल्फा की जगह भी आप वही रख दीजिएगा, बस यहाँ जहाँ जहाँ थीटा है सर अल्फा रख दीजिएगा, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ अल्फा रख दीजिएगा। और रखने के बाद आपको दिखेगा कि ये बहुत ही अजीब व गरीब कॉम्प्लेक्स तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें हर जगह tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये सब होगा, और ये बहुत ही डरावना मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सो अगर ये डरावना बन जाए तो इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे? आई एम गिविंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट, यू हैव टू पुट tan अल्फा बाई 2 इजिकल टू जेड। जस्ट पुट tan अल्फा बाई 2 इजिकल टू जेड। जेड इज एनी नंबर, जस्ट पुट जेड, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसान हो। जहाँ जहाँ आपको tan अल्फा बाई 2 दिखे, आपको यहाँ पे भी दिखेगा i माइनस a वाले में भी, और इस पूरे पोर्शन में भी दिखेगा। तो आप उसको जेड पुट करिएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने क्या आता है आपको सर? किसका क्वेश्चन था? मेरा था सर, नेम? अर्शदीप सर। ओके, मल्टीप्लाई करने आता है? हाँ जी। ओके, आई विल चेक योर DAQ एंड देन आई विल गेट बैक टू यू पर्सनली, राइट, कि आपको मल्टीप्लाई करने आता है नहीं आता है। आई हैव नॉट चेक योर DAQs, नो, आई विल शो यू द आंसर्स ऑल्सो, आई सेंड यू द आंसर्स, यू कैन मैच, खुद से ही आपको मैच करना है तो मैं क्लास में आपको शो कर दूंगा, राइट। व्हाट आई विल डू बाय चेकिंग, देखो मैंने तुम्हारा आंसर्स क्यों मंगवाया है, यू नो,
I need not to check your answers. You need to check your own answers. Just I will give you the solution. Go check your answers and report back to me how many marks are you scoring, so that you realize what is your current level and where you need to improve. Right? I will just show you the solutions. But still, you need to submit me the solutions so that I can see your approach. What kind of approach are you taking? Is the approach right or not? Right? That is what I'm telling you. That is what I mean when I say individual guidance. Okay, so going from point A to point B, there are various methods, but we need to take the shortest path with the displacement. So just for the approach checking, you will send me the assignments. Okay, so यहाँ पे सब कुछ रख देना. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है अर्शदीप सर, राइट, आता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आता है तो प्लीज गो एंड वॉच द रिकॉर्डिंग एंड सी हाउ आई हैव मल्टीप्लाइड. I have explained in great detail and very beautifully, right? Everyone has understand. Even a 7th class student will understand. I hope you will also understand. Okay, you are better than that. I believe that. Okay, so I think 30 is sorted out now. Yes, sir. Okay, do that and report back to me. Okay, that you have done it. Okay, I plus a LHS RHS के अगर बराबर आ गया सर अर्शदीप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. करके आप हमें रिपोर्ट बैक करेंगे. ओके, इसके अलावा जो क्वेश्चन है आई एम टेकिंग 50 का था, उससे पहले तो 30 के बाद 31 भी था. ओके, now let us see 31. So 31 is the word problem solution, na? Word problem solution. So how do you approach word problem solution? So word problem solution, I have already told you, there is a step called RGDFC. You just need to read it well and frame a matrix. Okay, so just read it well. There is a trust fund. Okay, all right, has rupees 30,000. So it has 30,000 that must be invested into two different types of bonds. Let us say मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास 30,000 रुपये है, और आपको अब देखो 30,000 रुपये अगर तुम अपने पास रखोगे तो खर्च हो जाएंगे, राइट? तो उसको आपको जाके बैंक में जमा करना. बैंक वाले आपको बोलते हैं कि सर हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स हैं, दो तरह के स्कीम्स हैं. इस वाले बॉन्ड में आप जमा करिएगा. जो पहला वाला बॉन्ड है उसमें हम आपको सर 5% इंटरेस्ट दे देंगे, और अगर आप दूसरे वाले में जमा करते हैं सर तो हम आपको 7% इंटरेस्ट दे देंगे, राइट? तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको 30,000 को कैसे कैसे जमा करते हैं, राइट? मतलब आपको दोनों में जमा करना है. यू आर नॉट अलाउड टू कि सर 7% यहाँ मिल रहा है सब इसमें ही कर देते हैं, राइट? यू हैव टू इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट. यहाँ लिखा है यू हैव टू, यहाँ क्या लिखा है, मस्ट बी, है ना? सो डू नॉट बी ओवर स्मार्ट विद द क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे मस्ट भी लिखा है. ओके, सो 5% आपको इन्वेस्ट करना है पहले वाले में, सॉरी इसका कुछ पोर्शन इस वाले में करना है और इसका कुछ पोर्शन दूसरे वाले में करना है. तो बताओ कितना कितना करोगे? सिंपल बात, मान लेते हैं कि एक्स रुपी हम इन्वेस्ट करेंगे किस वाले बॉन्ड में, 5% वाले बॉन्ड में. तो कितना रुपया बच जाएगा बताओ? एक्स रुपया अगर हम 5% वाले में जमा कर दें तो कितना बचेगा? 30,000 minus x. 30,000 माइनस एक्स रुपया बच जाएगा, Minus और x. उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे 7% वाले बॉन्ड में, राइट? तो ये जो यहाँ पर है ये हमारा इंटरेस्ट है, ये जो है हमारा ये इंटरेस्ट है. ओके, और ये भी जो है ये भी इंटरेस्ट है, राइट? ये इंटरेस्ट है. अब इंटरेस्ट किस पे मिलता है, राइट? अगर मैं बोलूँ कि आपने 500 रुपया जमा किया, राइट? तो जो रुपया आप जमा करते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं सर, और प्रिंसिपल पर ही हमको इंटरेस्ट मिलता है. जैसे अगर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा तो जो हम मूलधन जमा करते हैं, जो हम प्रिंसिपल जमा करते हैं उस पर ही मिलेगा, राइट? यानी कि आप 5% को मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल से. आर यू गेटिंग इट? यू विल मल्टीप्लाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू विल मल्टीप्लाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द प्रिंसिपल. इज दिस थिंग क्लियर? Yes, sir. So now Yes, sir. अब आपको दो मैट्रिक्स बना लेना है. You need to solve this question. It can be easily solved without matrix also, right? But you need to solve it using matrix multiplication. Determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. So let us quickly form the matrices. So we will form two matrices, right? एक तो हमारा अमाउंट हो गया, अमाउंट के लिए एक मैट्रिक्स बना लेंगे x, और दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x. ओके, और दूसरा हम बना लेंगे हमारा इंटरेस्ट के लिए एक मैट्रिक्स हम बना लेंगे b, जो हमारा इंटरेस्ट के लिए होगा. एक 5% का है और एक है हमारा 7% का. नाउ यू विल टेल मी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके अपने को कितना रुपया चाहिए. इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, ट्रस्ट फंड को उससे आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कितना इंटरेस्ट आना चाहिए एनुअली, 1800 तो आना ही चाहिए. इसमें दो सवाल है, एक ए वाला है, मैं ए बताता हूँ, आप बी खुद बना लीजिएगा, राइट? तो 1800 चाहिए, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 1800. आई होप यू आर गेटिंग मी कि आपने कुछ रुपया जमा किया, उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला, और वो टोटल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कम से कम 1800 होना चाहिए, राइट? तो a इंटू बी इजिकल टू 1800. ऑल राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir. सो अब मेरे को बताओ कि ए बी करेंगे या बी ए करेंगे. क्विकली आंसर, क्या ए बी करेंगे कि बी ए करेंगे? ए को बी से गुना करेंगे, B को A से करेंगे. Sir, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं.
Wait. No, we cannot do that. Let us see. Let us see what you told is right or not. Anyone? ये सर कह रहे हैं कि दोनों में से किसी को कर सकते हैं. Anyone has a different opinion? Why don't you remember? So A into B. CR rule. Why don't you remember? What does CR rule mean? CR rule means that multiplication is only defined. Multiplication is only defined. मैंने CR rule में आपको क्या पढ़ाया था? Multiplication पहला कॉलम दूसरा करो इक्वल. हाँ, मल्टीप्लिकेशन इज ओनली डिफाइंड जब पहला का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो. तो चेक तो करिए सर, ऑर्डर लिखिए. व्हाई आर यू नॉट थिंकिंग? प्लीज थिंक. हवा में क्यों आंसर दे रहे हो? है ना, प्लीज थिंक. सी दिस इज हाउ मेनी रोज? 1. एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 2. सो 1 क्रॉस 2. एंड इसका ऑर्डर अगर हम बोलेंगे, सो दिस इज 2 rows and 1 column, so 2 cross 1. So now write the order side by side, 1 cross 2 and 2 cross 1. This is A and this is B. So you see column and row are equal. Column and row are equal. So नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, न्यू ऑर्डर विल बी 1 cross 1. न्यू ऑर्डर विल बी 1 cross 1. एंड दैट इज व्हाट वी वांट. अगर मैं आपको बोलूँ कि 1800 को एक मैट्रिक्स में दिखाओ, 1800 को एक मैट्रिक्स में दिखाओ, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 cross 1. एंड वी वांट 1 cross 1. वी वांट 1 cross 1. एंड नाउ सर इफ यू टेक बी ए, एज यू आर सेइंग कि किसी को भी ले सकते हैं. नाउ लेट अस चेक बी ए. बी ए में क्या गलती आएगा? इफ वी टेक बी ए, सो बी क्या आएगा? I hope you have already realized what I am telling you, but still let us do that. B is 2 cross 1 order and A is 1 cross 2. So first का row, दूसरे का column. So multiplication is defined. I agree with you, sir. Multiplication is defined. But if you see the new order will be 2 cross 2. But we want a 1 cross 1 new order only. Am I clear? Yes, sir. So that is why. And now I hope you get the point. Now just multiply, right? And do it. I'm not going to tell you how to multiply, right? I'm not going to tell you that. Okay, go and watch the video if you don't know still. But let me tell you, if you do not know how to multiply, nobody can save you, right? Because multiplication is the most important topic. That is why around 30 questions I have given in DAQ to practice multiplication. I will check your DAQ and I will return to to the people who have not solved it correctly personally also. So wait for that. Okay, so I hope this question is clear. This was 31. Apart from this, somebody also asked 32. I'm not going to tell you 32. Okay, जिनका भी क्वेश्चन था 32, I'm not going to tell you that. Why? Because 32 is a similar situation, right? Go and frame a matrix. Okay, are you there, sir? जिनका भी 32 था. Yes, sir. Yes, sir. Okay, who is this? So Abhishek. Can you do it now? Yes, sir. Okay, do it and send back to me. Okay, I'm Sure. noting down your name. Just wait. 32 is Abhishek. Okay, now let us move further. I think everybody has solved 33 and 34. It was very good question, 33 and 34. If you are saying that you have solved, and mark it very important. 33 and 34, mark that as very important for NDA, right? Because these kind of questions have already come in NDA, right? These 33 and 34. Nobody has told me कि 33, 34 उसका doubt है, and then it is very good. अगर नहीं है, anyone here जिसको 33, 34 doubt है? Okay, very good then, है ना? You can get back to me later also. नहीं डाउट है तो अच्छा बात है. Okay, just but let me tell you, इसमें आपको चेक करना होगा CR रूल लगा के, right? CR rule is a very important tool that I have given you, right? Expect 2 or 3 questions from CR rule in NDA exam, right? It can come just directly application of CR rule. Okay, so you just need to say कि PY का क्या डिफाइन होगा नहीं होगा, right? और CR rule अप्लाई करो, फिर PY का जो ऑर्डर होगा वही WY का होगा, फिर सॉल्व करो. आई थिंक इसका क्या आंसर आता है, शायद 1 आता है, वो A आता है शायद, देख लेना. और उसके बाद फिर Yes, sir. और इसमें जो है n इजिकल टू पी देन द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस पी जेड, इसका ये आता है क्या? B आता है शायद. Yes, sir. हाँ, मेरे को गलती से याद हो गया आंसर. आई एम नॉट सॉल्विंग. ओके, तो देख लेना. तुम किसी को अगर कोई दिक्कत आए तो एक बार पूछ लेना मेरे से. इफ यू नॉट आस्क हाउ विल आई टेल यू. ओके, ये हो गया 31, 32 डन. उसके बाद तो 33, 34
अच्छा 33 34 है, मतलब आई हैव रिटन इन द वेरी लास्ट. ओके देन आई हैव टू डिस्कस 33 34. किसी का तो है डाउट, पता नहीं किसका है, लेकिन आई हैव टू डिस्कस, सो विल डिस्कस इट. आर यू देयर मैम? 33 34. नो यू आर नॉट देयर ना. ओके सो स्टिल आई हैव टू डिस्कस, we'll come back to it. After 33 34 we have 28. 28 में क्या हो गया यार, बहुत आसान है. ए यहाँ दिया हुआ है और ये निकालना है, तो जस्ट फाइंड ए क्यूब. ए क्यूब कैसे निकलेगा? पहले ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, और ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए से आपको ये याद आता है कि ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 2 + 1, राइट. तो यहाँ से आपको पीरियोडिक मैट्रिक्स क्यों नहीं याद आता है? आपको याद आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स. पीरियोडिक मैट्रिक्स, इसका पीरियड बताओ कितना है? Say 2. 2. Period is 2. I told you that a periodic matrix is a matrix in which a to the power k + 1 is equal to a, right. so वहाँ से तो पीरियोडिक मैट्रिक्स में अगर वो होता है, ठीक है, तो वो सेपरेटली मैं बता रहा हूँ कि अगर ये a आ जाता तब इसको पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं और इसका पीरियड k होता. ओके वापस आते हैं. तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए. डन. तो यहाँ पर पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए इंटू ए. तो यहाँ पर आपको ए दिया है, बस आप ए और ए मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आपको ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करके ए क्यूब निकाल लीजिएगा. फिर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा सब कुछ, ए 6 ए स्क्वायर पुट कर दीजिएगा यहाँ पे ए. और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का? 3 order 3. ऑर्डर 3 का. क्यों? Because A matrix is of order 3. हाँ, और एडिशन में हम सेम ऑर्डर को ही ऐड करते हैं, राइट, इसीलिए. ओके तो ये हो गया. तो जिनका भी था 28, आर यू देयर सर मैम? नो यू आर नॉट देयर स्टिल. ओके डन. So any one of you, do I need to explain matrix multiplication again or is it fine? Anyone? Don't hesitate. Fine, sir. Fine. Fine, sir. Okay. Yes, sir. तो अभी किसी को पर्सनली कुछ होगा तो पर्सनली मैसेज कर देना यार. Okay, we'll go by the opinion of the public, right? Okay. So apart from this 28, there is 44, 45. Now let us quickly get back to 33 and 34. See, let me quickly tell you about 33 and 34. See, there is assume x, y, z, w, p. There are matrices of these certain order that are given. Let me clean the area for you. And you need to find, the question says that the restriction on n, k and p. The restriction on n, k and p, so that this is defined. So just start with this. py plus wy is defined. So just focus on py. So p का order क्या है यहाँ से ढूंढो. So p का order है यहाँ पर, एक मिनट, 1 2 3 4 5, यही है ना, p क्रॉस k. सो p का ऑर्डर है p क्रॉस k. और y का ऑर्डर क्या है? y का ऑर्डर अगर ढूंढेंगे तो यहाँ पर है 3 क्रॉस k. 3 क्रॉस k. आपको इस वर्ड का मतलब पता है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः. हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्रमशः या ऑर्डर, इन ऑर्डर. मतलब जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट आ रहा है उसी ऑर्डर में लेना है. मतलब अगर x पहले आ रहा है तो x का ये है, फिर y पहले आ रहा है. आई होप यू गेट दैट. ओके सो p क्रॉस k और y का आपका 3 क्रॉस k होगा. w का क्या होगा? w कहाँ गया? n क्रॉस 3. एंड y का अगेन y का होगा आपका 3 क्रॉस k. नाउ लेट अस अप्लाई CR रूल. इफ py इज डिफाइंड, यू ऑलरेडी नो इफ py इज डिफाइंड, तो पहले का कॉलम यानी कि k दूसरे के रो के बराबर होगा, यानी कि k इज इक्वल टू 3, यानी k इज इक्वल टू 3. सो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, राइट. k इज इक्वल टू 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 हो सकता है. अब आगे चेक करते हैं. तो अगर k इज इक्वल टू 3 है, अब अगर आगे चेक करें तो इसका ऑर्डर क्या आएगा बताओ? py का ऑर्डर क्या आएगा ये बताओ? py मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या आएगा? P into K. Cross K. p क्रॉस k आएगा, जो बच जाता है वो आता है. और फिर wy का ऑर्डर बताओ. wy में भी हम देख रहे हैं कि ये 3 क्रॉस 3 सेम है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? N cross K. N cross K. n N क्रॉस cross k. N. हाँ, तो हम देख रहे हैं कि p क्रॉस k और n क्रॉस k दोनों सेम होना चाहिए ना, क्योंकि प्लस साइन में क्या होता है? प्लस साइन में तो ऑर्डर सेम होता है. तो p क्रॉस k Yes, और sir. n क्रॉस k क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो यहाँ k सेम है, यानी p किसके बराबर है? n के. p किसके बराबर है? n के. तो यही है ऑप्शन सही. ओके ऑल राइट.
Done na? Yes or no? Yes, sir. हाँ sir, done. Okay, now let me not tell you this. Try yourself, right? जिनका भी था, please try yourself. And if you still are not able to do, get back to me personally. Now, apart from this, everything I have already discussed. 40, 28 done. 42, 44, 45. 42. Okay. Somebody was telling 42. Are you there in class? 42? Yes, sir. Okay, who is this? Samit Rawat. Okay, let me discuss 42 for you. Okay, and get back to me after reporting, solving it. A and B are symmetric matrices of the same order. So whatever is given, right, just write it. A and B are the symmetric matrices of the same order. So if A and B are symmetric, then A transpose is equal to A. All right. अगर A सिमेट्रिक है सर तो A ट्रांसपोज A होगा. B भी सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज क्या होगा? B होगा. Do not miss any line. Same order. They are of the same order. Please do not miss that also. Right. If they are of the same order, that means why it is written that they are of the same order. Can you tell me why it is written they are of the same order? Reasons. So तभी वो मल्टीप्लाई भी होंगे अगर ऑर्डर सेम होगा. Yes, sorry, I missed that. है ना? Please repeat. Anyone? Do you know what reason? यहाँ क्यों लिखा है कि ये सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा? So तभी वो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी होंगे आपस में. Yes, very good. सेम ऑर्डर होगा तभी तो CR रूल फॉलो होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होगा ना. एंड देन सो डैट ए बी, क्योंकि आप आगे देखो कि ए बी लिखा है तो वो कंडीशन इसलिए दिया है कि सेम ऑर्डर है तो ए बी डिफाइंड होगा. दैट आई वॉन्ट यू टू थिंक. ओके, एंड डोंट वरी, विल गेट यू टू दैट लेवल सून. सो डैट ए बी इज सिमेट्रिक. मतलब अपने को क्या शो करना है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द आइडिया इज RGDFC. आई एम, देखो, सी हाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. आई एम रीडिंग इट वेरी वेल. आई एम अंडरस्टैंडिंग what is given to complete depth. Then I am understanding what is the demand of the question. D say demand. So see, what is the demand? I have to show that AB is symmetric. So that AB is symmetric. So now how do I show AB is symmetric? So to show anything as symmetric, I know I have to take the transpose and prove the transpose equal to the matrix itself. So I know that I have to take the transpose of AB and prove it equal to AB. All right? This makes sense? Yes, sir. Okay. So I will do this. This is my job. This is my target. Now you know the target. Now you are focused. This is the demand. This is the demand. Now you need to think of formula or facts to do this. Okay, so this is the formula or fact. कोई आपको बताने नहीं आएगा कि ए बी सिमेट्रिक है तो क्या करना होता है. दिस इज योर नॉलेज ऑफ फॉर्मूला एंड फैक्ट्स. ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी. नाउ सी इज कैलकुलेशन. नाउ प्रोसीड विद इट. नाउ आगे भी पढ़ो. इफ एंड ओनली इफ. सो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑपरेटर. इफ एंड ओनली इफ, वी इन शॉर्ट वी कॉल इट IFF. ए एंड बी कॉम्यूट. मतलब ऐसा तभी होगा. कैसा? यानी कि ए बी सिमेट्रिक तभी होगा जब ए एंड बी कम्यूट करे. ए एंड बी कम्यूट करे मतलब ए बी ए के बराबर हो. कम्यूट मतलब तो पता ही आपको. ठीक है, मतलब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अगर ए बी ए के बराबर होगा, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, इसको आपको ट्रू मानना है ए बी ए को, तभी ये सही होगा कि ए बी सिमेट्रिक हो. अमित, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल? Yes, sir. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट. ओके, जस्ट स्टार्ट विद दिस. देखो, आराम से सॉल्व हो जाएगा. इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. इफ यू अंडरस्टैंड यू विल सिंपली सॉल्व इट. नाउ टेल मी व्हाट इज ए बी ट्रांसपोज. So B transpose A transpose. Tell me, see, if B is symmetric, then what is B transpose? If B is Sir. symmetric, what is B transpose equal to? B is symmetric. हाँ, तो B transpose किसके बराबर होगा अमित, अगर B symmetric है तो? So B के. और A transpose किसके बराबर होगा? A के सर. खत्म बात. और अमित क्या गिवन है कि A B बराबर क्या है? सर A B का होल लाइक. अरे अमित, आई एम हाईलाइटिंग ये, इधर देखो तो. A B इक्वल टू क्या गिवन है? Commute. Commute, obviously. Please be very relaxed, Amit, right? Don't worry. Please be very relaxed, think, and you will get the right answer. AB is equal to BA, right? It is given, right? See, it is clearly given that AB is equal to BA. So BA की जगह आप क्या लिख सकते हैं अमित? सर A B की जगह B A.
हाँ मतलब बी ए की जगह ए बी, हाँ राइट, यस यानी कि ए बी ट्रांसपोज ए बी आ गया अमित, यस सर रीच आवर टारगेट, खत्म बात. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. ओके, बट लेट मी टेल यू, ये तो आसानी से कर दिया मैंने, बट देयर इज अ ट्रिक हेयर. इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट को कन्वर्सली भी प्रूव करना होता है, दैट इज प्रोसीजर इन मैथमेटिक्स. Okay, you have, if any time if and only if a statement comes, you have to prove that statement both directly and conversely. Means now you have to start reverse. Okay, means आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि ए बी ट्रांसपोज को ए बी मान के, ओके, इसको सिमेट्रिक मान के, ए बी को सिमेट्रिक मान के, लेट मी रिपीट इट सो डैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, कि आपको ए बी को सिमेट्रिक मानना होगा कि वो गिवन है, सिमेट्रिक मानना होगा, और फिर शो करना पड़ेगा कि ए बी बराबर बी ए है. This I am giving you in HW. Do this. Okay, in HW. समझ में आया कि if and only if स्टेटमेंट में थोड़ा अलग होता है. हाँ if and only if स्टेटमेंट में दोनों साइड से प्रूफ करना होता है. पहले स्टार्टिंग से एंड जाना होता है, फिर एंड वाले को सही मान के फिर स्टार्टिंग आना होता है, राइट, जो भी करना है प्रूफ. ओके, एक बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टेलिंग यू. कि पहले तो हमारा ए बी बी ए था, तो फिर सिमेट्रिक शो करना था, जो हमने किया. ओके, लेकिन अब हमने सिमेट्रिक मान के फिर ए बी इक्वल टू बी ए शो करना है. This is the homework. Okay, now let us move. I hope I am clear. 42, then 44. 44 क्या है? Prove that an is equal to this where n is positive integer. This you can do by showing it using principle of mathematical induction, if I am not wrong. Okay, this you can do by प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑल्सो. किसी ने किया है ये वाला 44? Yes, sir, I have done, but without POM. I have taken a square, a cube 2 times, and then placed it as 1 plus 2 and form and generalized it. Generalized. Okay, generalized. Who is this? Sir Kshitij. You have sent me your answers? Yes, sir, I have sent. Okay, I will check. Okay, but in general it is to be done by the principle of mathematical induction. Let me tell you how the method works. Okay, so the method is something like this. I hope there are not much questions regarding the principle of mathematics. There is one more question, right? This is 50 ka C, right? Somebody also asks 50 ka C, so let me first take 50 ka C. This question, can be done by using principle of mathematical induction, but please remember in NDA they will not ask you to do it by principle of mathematical induction. They will just ask this result, so directly remember this result whatever is given. If A and B are square matrices, अगर A और B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है और ए बी इज इक्वल टू बी ए बी है, तब क्या होगा? बाय इंडक्शन हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी पावर एन, आई रिपीट, ऐसे देखो, ए बी पावर एन इक्वल होगा बी पावर एन इंटू ए के, राइट. ओके, प्रूव दैट, और आगे भी है ना, मतलब 2 पार्ट है, एक ये भी प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एक ये भी है कि ए बी पावर एन जो है ए पावर एन इंटू बी पावर एन होगा. इसमें दोनों क्वेश्चन है, राइट. तो इंडक्शन का मेथड आई होप कि थोड़ा बहुत आपको बताया गया होगा कभी, है ना. लेट मी टेल यू इन अ वेरी ब्रीफ. Induction was invented basically to do this: 1 plus 2 plus 3 plus 4 and dot dot dot. If I take till n, I'll get n into n plus 1 upon 2. So how do I prove this? So इसके लिए इंडक्शन का मेथड था कि आप इसको पहले n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं. प्लीज नोट द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू शो इट ट्रू फॉर n इजिकल टू 1. सो n इजिकल टू 1 के लिए क्या आएगा बताओ? LHS अगर हम देखें तो LHS तो 1 तक ही रुक जाएगा, तो 1 आएगा. और RHS क्या आएगा? RHS में अगर आप 1 पुट करेंगे हर जगह, 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, तो क्या आएगा? ये आएगा आपका 1 इंटू 2 बाई 2, जो कि 1 आएगा. सो LHS इजिकल टू RHS आ गया. LHS इजिकल टू क्या आ गया? RHS. मतलब 1 के लिए ट्रू है, सो P1 इज ट्रू. हम क्या बोलेंगे? P1 इज ट्रू. P1 का क्या मतलब है? लेट मी टेल यू. सो वॉट एवर स्टेटमेंट इज गिवन, वी कॉल इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और इंडक्टिव स्टेटमेंट Pn. जो भी स्टेटमेंट दिया है जिसमें n के टर्म्स में कुछ भी आ रहा है, उसको हम Pn बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट. उस स्टेटमेंट को हम पहले 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, फिर हम उसको k के लिए ट्रू मानते हैं. लेट पी के बी ट्रू. हम क्या मानते हैं? लेट पी के बी ट्रू. तो अगर k के लिए ट्रू होगा तो क्या होगा बताओ? 1 प्लस 2 प्लस आगे बताओ,
1 + 2 + 3 + 4 ... k = k × k + 1/2। हर जगह k आ जाएगा, तो ये k के लिए ट्रू मान लिया। और फाइनल टारगेट हमारा होता है कि p k + 1 को ट्रू साबित करें। p k + 1 को क्या साबित करें? ट्रू साबित करें, ट्रू शो करें। अगर आप इसको k + 1 के लिए भी ट्रू दिखा देंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी यू आर टेकिंग k एज एनी आर्बिट्ररी नंबर। ओके, इफ़ यू आर टेकिंग एनी आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर मीन्स आप 2 भी ले सकते हैं, 3, 1 करोड़ भी ले सकते हैं। यानी आपने 1 के लिए तो सही दिखाई दिया, और आर्बिट्ररी माना था k को, उसके लिए भी सही दिखा दिया। तो आर्बिट्ररी से एक ज़्यादा के लिए अगर मतलब आर्बिट्ररी के लिए आपने सही माना था, k के लिए सही माना था, और उसके एक ज़्यादा के लिए अगर आपने सही दिखा दिया, मतलब ये तो सबके लिए सही हो गया। क्योंकि k अगर 10 होगा, मान लो k अगर 10 के लिए सही है और आपने 11 के लिए दिखा दिया, तो k फिर 12 और 13 के लिए भी सही हो सकता है, 14 और 15 के लिए भी सही हो सकता है, 1 करोड़ और 1 करोड़ 1 के लिए भी हो सकता है, मतलब हर नंबर के लिए हो सकता है। आई एम गिविंग यू द लॉजिक बिहाइंड व्हाई द मेथड इज लाइक दिस। Okay, now let me not delve into much depth of this. We will come and discuss it separately when we come to this chapter called principle of mathematical induction. So बाकी तो यही है, p के लिए +1 के लिए ट्रू दिखाना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ n है, शॉर्ट में बता दूँ, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको क्या दिखना चाहिए? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको क्या दिखना चाहिए? k + 1 दिखना चाहिए, अगर आपको p k + 1 को ट्रू दिखाना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बताओ? 1 + 2 + 3 + ... k तक तो आएगा ही, k तक तो आएगा ही, और साथ में अब अगला एंट्री क्या होगा? अगला एंट्री होगा k + 1। तो k तक एंट्री को क्या लिखेंगे बताओ? अगर k तक के एंट्री का पूछे हम, तो k तक के एंट्री को आई कैन राइट, k तक के एंट्री को लिखेंगे k × k + 1/2, और अगला एंट्री क्या है? k + 1। इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा बताओ? k + 1। k + 1 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा हमारा k/2 + 1। ओके, तो यहाँ आएगा k + 1 और नीचे आएगा 2, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, तो ये आएगा k + 2। एंड नाउ यू कैन सी कि k + 2 को हम क्या लिख सकते हैं? k + 2 को वी कैन राइट k + 1 + 1, राइट। आई एम टेलिंग यू दिस कि k + 1 + 1 इसको लिख सकते हैं, k + 2 को। तो अब मैच करो, मैं क्या बोल रहा था कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k + 1 आना चाहिए। तो देख लो, इस साइड पूरा जहाँ जहाँ n है लास्ट टर्म k + 1 आ रहा है, और इस साइड मैच कर लो, n की जगह क्या आना चाहिए? k + 1। तो n की जगह k + 1 आ तो रहा है, और n की जगह क्या आना चाहिए? k + 1। तो देखो n की जगह क्या आ रहा है? k + 1, तभी तो k + 2 आ रहा है by 2। सो वी हैव प्रूव्ड इट दैट pk + 1 इज ट्रू। इस पॉइंट पे pk + 1 क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। सो we can now say that Pn is true. After all of this, we can say that Pn is true. So you get my point. Clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I don't think कि कोई डाउट आएगा ज़्यादा, right? If you are sincere and you are just listening to me carefully. Okay. आगे तो इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करना इसी तरह से, जो ये वाला क्वेश्चन है AN/BR² मैट्रिक्स। इसको चलो मैं इसको HW में दे देता हूँ, और इसको अभी बता देता हूँ थोड़ा सा रफली। पहले n = 1 के लिए इसको ट्रू दिखा लेना, क्या होगा बताओ? AB LHS क्या आएगा बताओ? अगर n को 1 डालेंगे तो LHS भी AB आएगा, और यहाँ 1 डालेंगे तो RHS BA आएगा। मतलब AB BA के बराबर है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? AB BA के बराबर, तो AB BA के बराबर है, मतलब AB = AB, तो n = 1 के लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर k के लिए ट्रू मानना, k के लिए ट्रू मानोगे तो क्या होगा बताओ? AB पावर k इज इक्वल टू B पावर k इंटू A। ओके, B पावर k इंटू A। Meanwhile, when you are not asking anything, turn your mic off. Turn your mic off. Who is this? Sir, please turn your mic off. Done. So a b to the power k is b to the power k into a। ये आप k के लिए ट्रू मान लेंगे, और अब आपका मेन चैलेंज यहाँ से शुरू होता है। ये आप तो pk को मान लिया ट्रू, अब आपका मेन चैलेंज शुरू होता है कि आपको k + 1 के लिए दिखाना होगा। तो कैसे दिखाएंगे बताओ? कैसे दिखाएंगे? LHS से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा कि a b to the power n के जगह आपको रखना पड़ेगा k + 1। n के जगह क्या रखना पड़ेगा? k + 1। ओके, और आपको फाइनली इधर भी वो लाना पड़ेगा। इसको किसके बराबर लाना पड़ेगा बताओ? किसके बराबर लाना पड़ेगा?
b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए, इसके बराबर लाना पड़ेगा, राइट? तब आपका काम हो जाएगा, तब ये प्रूव हो जाएगा, राइट? ओके, सो ए बी टू द पावर k प्लस 1, इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे बताओ? b पावर k प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? b to the power k into b into b. b टू द पावर k इंटू बी। और अभी देखो ए बी के को क्या लिख सकते हैं बताओ? ए बी के को क्या लिखेंगे यहाँ पे? b to the power k into a. K A. इंटू बी, ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल, प्लीज थिंक, फोकस करो। जहाँ पे मैं मार्कर, इफ़ यू आर इस क्लास में 1 सेकंड का भी फोकस मिस करोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इफ़ यू आर इन योर मोबाइल फोन थिंकिंग कि ये कोई ऑर्डिनरी क्लास है, दिस इज नॉट लाइक दैट। आई एम कीपिंग इट इंटरएक्टिव, दिस इज 1 to 1, दिस इज योर ट्रेनिंग योर माइंड, आई एम ट्रेनिंग योर माइंड। मेरे को भी वो आता है कि मेरे को क्या नॉलेज है बता के चला जाना, राइट? आई एम नॉट डूइंग दैट, ओके? दिस इज योर ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड, ओके? सो प्लीज़ फुल फोकस हेयर। सो 8 b टू द पावर k इंटू ए, सो ये गिवन है आपका। सो ए बी के को आप क्या लिखेंगे? ए बी के को बी के ए लिखेंगे। अब बताओ, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे हम? ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को ba. yes, it is given, it is given. When your mind goes blank, ask yourself, am I missing on something? In any question, if your mind goes blank, so most of the cases what happens, the candidate misses the data. Whatever data is given, he misreads it, or he misses it totally. So ask yourself, am I missing on something? So you will get the hint. And if you still miss it, if you're still not getting, then apply multi-dimensional approach. I already told you, when one door closes, do not sit in front of the door and keep crying like a civilian. Act like an officer and find other doors, it is always there. Okay, so b to the power k, ab becomes ba. So now you see bk into b will be, bolo, b to the power k plus 1 into a. so see, I have achieved my target, right? Understood? Yes. एक मिनट, किसका बोलो? हाँ, एनी डाउट्स? बोलो नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, अरे और लोग तो बोलो। ये विदुषी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Sir, please repeat the last part of BKAB. वही तो फिर मैं बोल रहा हूँ, राइट? व्हेन आई एम आस्किंग दो उसके बाद आप बोल रहे हो, राइट? स्टार्टिंग में बोलो, कुछ भी नहीं समझ में आया स्टार्टिंग में बोलो, है ना? लेट मी टेल यू, अगर इस बैच में आपको आप नहीं पूछ सके, लेट मी टेल यू, इंडिया में किसी भी बैच में नहीं पूछ पाओगे, राइट? क्योंकि सब जगह भीड़ है। दिस इज द ओनली बैच यू कैन आस्क, ओके? सो प्लीज़ बी वेरी फ्रैंक एंड आस्क, ओके? प्लीज़ मेक गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज दैट यू आर गेटिंग, ओके विदुषी? एंड देन एनीवन एल्स? और किसी को डाउट है? समझ में आ गया? ओके, सबको आ गया। आई एम रिपीटिंग यू फॉर यू। हाँ अर्शदीप, आ गया सर। ओके, वेरी गुड। सो लास्ट पार्ट रिपीट कर देता हूँ। b टू द पावर k इंटू बी, प्लीज लिसन टू दिस मैम। b टू द पावर k इंटू बी, इसको b k प्लस 1 लिख सकते हैं, राइट? और इसको a लिख सकते हैं, राइट? कहाँ पे एग्जैक्टली दिक्कत है बताओ? सर मतलब जो हम लोग ट्रांजेक्शन किए वहां से यहाँ ए यहाँ बी से, टू द पावर के लिए, यस सर। ओके, इस लाइन से समझाता हूँ, ओके? इस लाइन से समझाता हूँ, सुनते रहना प्लीज़, राइट? ए देखो यहाँ पर ए को ऐसे ही लिख दिया मैंने, मिलाते रहना, राइट? जस्ट मैच इट, लाइन बाय लाइन मैच इट। सो दिस इज ए नथिंग है देयर। b टू द पावर k प्लस 1 को कैन आई राइट विदुषी दिस? कैन आई राइट दिस? जस्ट टेल मी दैट। क्या हम b पावर k प्लस Yes, 1 sir. को, क्या हम b पावर k प्लस 1 को b k इंटू बी लिख सकते हैं? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। यस सर, यस सर। Why? Because there is a rule called a to the power m into a to the power n, which is a to the power m plus, M plus N. okay? Yes sir. Okay, now we can write it like this. And now you see, this is we assume that the statement was true for k at this point pk. We assume that this statement is true. In principle of mathematical induction, I told you that there are 3 methods. First, 3 steps actually. First, we show that the statement is true for 1, n is equal to 1. Then we assume, the next step is that we assume that the statement is true for k, right? So this is our assumption, right? That this is true. So you have to consider that this is true. And then our task is to show that the statement is true for k plus 1 also. That is what we are doing.
See why I have, I am putting n के जगह k plus 1, right? My target is this. कहाँ गया? This is my target. This is my target. So यहाँ पर जो n है विदुषी, I am putting k plus 1 and I hope कि इधर भी k plus 1 आ जाए. That is what I am doing. Are you getting me? Yes, sir. Okay, now just do that. A b k. Okay, a b k, you can write b k into a b k है ना यहाँ पे देखो, a b k यहाँ पर है. This is a b k and you can write it as b k into a. So write it as b k into a. Okay, and then b is there, simple. And c, Vidushi, a b we can write a b as b a. So I have written a b as b a. So b k into b is b k plus 1 into a. You get me now, ma'am? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, you're always welcome. See, similarly, if anyone has any doubts, you can freely ask. Okay, that is what I am here for. Now, okay, nothing else left. तो POMI का जिनका भी जो भी होगा वो बना लेना. NDA में they will not ask you this whole procedure that I have told you. Right? They will ask you this question result directly. Please remember NCERT के miscellaneous में जो question है, example में जो question है, they will ask you the final results of that. Okay, it is clearly being asked. प्लीज़ उस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट याद करो, फाइनल रिजल्ट. ओके, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक विल टेल मी, आई विल बी टेलिंग यू. ओके, प्रूफ का जरूरत नहीं है. हो गया? और किसी का कोई डाउट है? 42 था. ओके, सी देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग फॉरवर्ड व्हेन देर इज़ पीछे में डाउट हो जाए. व्हाट डू यू वांट मी टू डू, है ना? किसी को ऐसा लग रहा है कि आगे पढ़ाओ आगे पढ़ाओ. व्हाट डू यू वांट मी टू डू? देन वी विल बी मेकिंग अ फेलियर ग्रुप. ओके, पीछे का कुछ भी आएगा नहीं, राइट? 10 कलेक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग, वही दूसरे बैच की तरह का कोर्स हो जाएगा फिर, है ना? सिर्फ पूरा एक वो तैयार हो जाएगा, लेक्चर बैकलॉग्स यही सब बस. आई डोंट वांट लेक्चर बैकलॉग्स. आई वांट टू ब्रीड दैट व्हेन दे कम आउट दे फील सो कॉन्फिडेंट, है ना, कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई विल टैकल एवरीथिंग. ओके, आई होप यू विल एग्री विद दैट थॉट प्रोसेस. ओके. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So thank you so much for being a little bit patient. Don't worry. Okay, we will be covering the syllabus well before the time. I can assure you that 100%, and I can assure you because I have done the syllabus in just 5 days. You can check the video; it is there. If it come to me, it comes to my taking a challenge. 5 days are enough. Okay, so please be very patient when you are learning something. एक बार सीखना होगा, फिर कभी नहीं सीखना पड़ेगा पूरा मैथ. आगे 42 अब कर लेना. 42 अब खुद से करना. कहाँ गया? 41 42 तो कर दिया नहीं, कहाँ पे था? 46 44. हाँ, ये जो 44 है ना, ये HW में है, ये करना. इसमें भी तो a पावर n आ रहा है ना, तो इसको देखो. अरे सिंपल है. a पावर 1 क्या आएगा बताओ? a पावर 1 क्या आएगा बोलो? सेम मैट्रिक्स ही आएगा सर. a आ Same जाएगा. as A. Same as A. -4 1 -1. अब RHS में पुट करो. RHS में 1 पुट करो, देखो वही आएगा. RHS में 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो. बोलो, बोलिए जल्दी जल्दी. 1 पुट करके बोलो वैल्यू क्या आ रहा है. 3 minus 4. 3 1 minus 4, 1 minus 1 -1 आ तो गया. देखो, सी दिस इज ट्रू. खत्म. 1 के लिए ट्रू हो गया. अब k के लिए ट्रू माने ना, k plus 1 के लिए दिखाना. प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ. ओके, आई एम नॉट डूइंग इट. ओके, एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज 50 का a. आई एम नॉट डूइंग 50 का a because 50 का a again is a word problem, and I have already discussed one word problem. How word problem works, please read well, sir. And then what you need to do, frame a matrix. Please try and frame a matrix. In fact, not one matrix, 2 matrices that you need to multiply. Just ask yourself what kind of 2 matrices can be formed. That depends on your reading skills and understanding skills. If you can form these 2 matrices, you can easily multiply them and you can get the answer. Okay, do that. And also be careful about the units here. Okay, be careful about the units. Be careful about if something is in dozen or anything, right? So make sure everything is in proper units, same units. Okay, that is one thing. Sometimes candidates get it wrong because of units. If you are in a rush, you will get it wrong because of units. So take care of units. So 50 is done. 50A, 50C is already done. 50B I already discussed tomorrow, right? It was a very good question. In fact, my favorite question is 50 this B. Okay, you are forced to think कि x क्या होगा, right?
कल मैंने बताया था कि x a b c d होगा, राइट? कैसे बताया था वीडियो में जाके देख लेना, राइट? एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब तो कुछ नहीं बता ना, 20, हाँ मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा। 44 45 42 44 45 42 मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा। आई हैव टेकन ऑल योर डाउट्स। ओके, यस, नाउ एनीवन, DAQ1, एनी मोर डाउट्स? No, sir. Okay, no, it's a no. Okay, so I have done, I have tried my best to solve all your queries. Okay, and now I request you to, whatever, we have discussed, go and solve them yourself. And I'm repeating again, there are no shortcuts. If you do not follow this process that I'm telling you, you will not achieve that target that I'm telling you, 100 questions right. Okay, there is a process to build that confidence that I will, get it right, every question right in one go. That demands accuracy, and accuracy demands practice. Okay, and this is the hard practice that you need to do. तो कभी भी अगर इसमें अभी भी किसी का कोई डाउट हो, अभी भी कोई यहाँ पे शर्मा रहा हो, तो पर्सनली मैसेज करके सर और मैम प्लीज़ पूछ लेना, राइट? एंड उसमें से सॉल्व कर लेना. नाउ लेट मी कम बैक. Sir, I have a doubt. बोलो. Yes, sir. Sir, please explain unitary matrices. Unitary matrices. Okay, very good. Let us take unitary matrices. But in return, Vidushi na? Yes, sir. Okay. In return, I will ask you something. Okay, please pay attention. A into A inverse is equal to identity. Okay, this you know? Yes, sir. Orthogonal matrix. No. No, sir. Sorry. This is just a general case. Now you said me orthogonal, na? Yes, Tell sir. me what is orthogonal. Yes, sir. Bolo what? So A into A transpose, Is equal to? identity matrix. Okay, this is orthogonal. Similarly, if you remember orthogonal, you can easily remember what is unitary. So just do this. A into A dagger. A into A dagger is equal to identity. This is unitary matrix. Let me show you in the formula sheet. Just wait. So this is the formula sheet and unitary matrix. So just focus at this point. Just focus on the portion that I am just showing you, nothing else, only this, and note this. यही काम आएगा बस, और कुछ भी काम नहीं आएगा. I told you कि आपको A को A dagger से मल्टीप्लाई करना है और I आएगा. और A dagger कभी NDA में पूछेगा नहीं. मैं आपको बता देता हूँ कि dagger क्या होता है. I already discussed in tomorrow class कि dagger का मतलब होता है आपको कॉन्जुगेट भी लेना है प्लस साथ में आपको ट्रांसपोज भी लेना है. मीन्स जस्ट टेक द ट्रांसपोज एंड ऑल्सो द कॉन्जुगेट. दिस इज द मीनिंग ऑफ डैगर. ओके, सो अगर मैं इसको एलेबरेट करके लिखूँ, मैं डैगर से याद कर लेता हूँ पर लिखूँगा इसी तरह से. ए इंटू, अब ए डैगर की जगह लिख दो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. इसको हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी बोलते हैं. ये जो डैगर ऑपरेशन है इसको हम बोलते हैं, अगर इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस, इस नाम से याद कर लो इसको, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के नाम से. ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के नाम से. तो ए इंटू ए, अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, अगर आई आ जाए तो ए को, इस केस में अगर ऐसा हो जाए तो ए को हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे. तो अब हम ए को क्या बोलेंगे? यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिट मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स अलग है. यूनिट मैट्रिक्स इज तुम्हारा वो Identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो अलग है. ओके, तो बस अभी के लिए इतना ही. ये सब, ये जो यहाँ पर जो भी और लिखा है वो बाद में मैं बताऊंगा. अभी डू नॉट फोकस ऑन ऑल दैट. व्हेन वी कम टू डिटर्मिनेंट विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस. अभी बस इतना जानो कि यूनिटरी मैट्रिक्स ये होता है. और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये सब तो लेने आता है ना. Yes, sir. ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट कर लेते हैं. क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके, होल्ड ऑन देयर. क्लास अभी वैसे ही आज क्लास को लेट स्टार्ट किया था, यू ऑलरेडी नो. ओके, कब स्टार्ट किया था? लेट मी शो. रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ. 60 मिनट्स. सो इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर, राइट? 1 hour and 30 minutes is what the class timing is all about. So if you want, you can have some water. I will give you a break. Wait for that very soon. So this is that, and apart from this, FST, right?
So I'm giving you a break of 2 minutes at this point, and just go freshen up, right? Have some water, and then report back to me at 21:36 hours. Okay, see you. Okay, so we are back again. I hope you are also back. Are you there? Yes, sir. आ गए. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So you have some refreshments, some water. Yes, sir. Okay, hope you are now feeling fresh. Okay, we have next 20 minutes to discuss certain more things, and yes, we'll be discussing also about the batch details, right? So please be there. And let me read the comments. What is this? I shared a jam file with the meeting. सॉरी फॉर दिस, मैं मीट पर नया हूँ, सो फीचर्स चेक कर रहा था. डोंट वरी, नो प्रॉब्लम. आई नीड टू डू समथिंग. इस पर मेरे को क्लिक करना है. नहीं सर, वो गलती से चला गया. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम. So now let us come and discuss this, and after that I will be telling you batch details. Okay, मेरा वो कोई मकसद नहीं, राइट, कि मैं शुरू में प्रमोशन करूँ, राइट. That is not the motto. Motto is your selection. So first let me do the task, and then I will be taking some minute out of your important time to tell you about the batch. Okay, first FST. So FST यार जो आज था, है ना, I framed some questions keeping in mind कि NDA किस तरह से वेरिएशन करता है, राइट. पहले I have observed PYQs, राइट, उसमें फिर सोच के I have done some variations. ओके, और ऐसे ही हर चैप्टर में हम वेरिएशंस करेंगे, राइट. एंड यू विल बी आई विल फोर्स यू टू थिंक मल्टी डायमेंशनली, है ना, इन ऑल ऑफ दिस टेस्ट. सो दिस इज जस्ट अ ट्रेलर. सो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स. सो देखो, क्वेश्चन जो पहला है ये वाला, आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल आंसर्स. सो यू टू आंसर मल्टीपली व्हाट एवर इज पॉसिबल. आंसर ऑल पॉसिबल टाइप्स, आंसर ऑल
Why is there a echo? Okay, multiple answer all possible types only, then you will get full marks. Think sharp and multidimensionally. जैसे देखो ये वाला मैट्रिक्स, ये कैसा मैट्रिक्स है बोलो? So row matrix and Row some matrix. rectangular matrix. Row matrix. ये है एक रो मैट्रिक्स और Rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. शायद ही बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है. ओके, यू नो दैट. ओके, and if you know that, please start thinking multidimensionally, right? If I am writing ki multiple answers possible, so you have to think na multiple answers. फोन ना बैटरी को ना और बताओ कभी को who ना is this? अरे अरे मोनिका यादव, राइट मैम? आपका माइक ऑन है, माइक से अननेसेसरी साउंड आ रहा है, टर्न इट ऑफ. Sorry, sir. ओके, टेल मी द अदर वन. आई एम जस्ट प्लगिंग इन द चार्जर. अगले का बताओ. बी. Sir, row matrix, column matrix, Matrix, column matrix, singleton matrix. singleton matrix. रो And मैट्रिक्स, so the square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स. वेरी गुड मैन. स्क्वायर मैट्रिक्स. एनीथिंग एल्स? The symmetrical matrix. Very good. Yes, it is also symmetric. Isn't it symmetric? Yes, sir. It's a sort of. Yes, sir. Scalar है sir. स्केलर. स्केलर स्केलर तो नहीं है यार. स्केलर में होता है कि जो तुम्हारा डायगोनल वाला एंट्री होता है वो सेम होना चाहिए, बाकी सब 0 0 होना चाहिए. यही होता है ना? Yes. मतलब इसमें Yes, sir. बाकी सब 0 तो नहीं है ना, स्केलर नहीं होगा. ठीक है. कमिंग बैक टू थर्ड, दिस इज So column matrix. Column matrix, rectangular Column matrix. Yes, sir. कमिंग बैक टू फोर्थ. So null matrix. I know Yes, I null have matrix. not told you this property, but I expect you to do some research, right? I have already discussed these kind of questions. ये तो इस बार आया था, NDA में भी आया था सेम क्वेश्चन. ओके, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आपको पता होना चाहिए कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक कॉल्ड एडजॉइंट. अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? No, sir. अभी नहीं पढ़ा ना? No, sir. ठीक है, वो अभी पढ़ेंगे. डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे. मैट्रिक्स ओवर हो गया, अभी मैट्रिक्स खत्म हो गया. अभी डिटर्मिनेंट पे मूव करेंगे. मैट्रिक्स में तो अब कुछ नहीं बचा ना, आई थिंक. यू थिंक एनीथिंग इज लेफ्ट इन मैट्रिक्स? Elementary operations. इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना ठीक थोड़ी होगा. एलिमेंट्री ऑपरेशन तो यार पूरा वो 2 पेज का निकलता है. Lengthy हो जाएगा, sir. हाँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो नहीं निकालेंगे, है ना? मतलब विल डिस्कस की है. इन्वर्स जब आएगा तो उसमें ये भी, जब डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में जब इन्वर्स आएगा विल डिस्कस की एलिमेंट्री ऑपरेशन क्यों ख़राब टेक्निक है, और उसको थोड़ा बुराई करके फिर वहाँ उसको देख लेंगे. एट अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक कि एनीथिंग इज लेफ्ट. नो, जस्ट सर्टेन properties of multiplication that I need to discuss. Okay, that I will be telling you. Okay, apart from this nothing is left. Okay, so you already are getting some idea where to focus on in NCERT. A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो इसको इधर ले आना तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा. बाकी ई जो है तुम्हारा ये है 1 0 0 2. ये कैसा मैट्रिक्स? Sir, scalar matrix. So diagonal matrix. Diagonal, scalar. Diagonal है sir. स्केलर Not scalar, not नहीं है. Square भी है sir. स्केलर नहीं है. Square sir. हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है. So Hermitian matrix बोल सकते हैं क्या सर इसको? हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो उसमें Yes, तो sir. उसमें आपको क्या लेना पड़ता है? Iota. उसमें एक मिनट, उसमें आपको Imaginary ट्रांसपोज number. लेना रहता है, फिर कॉन्जुगेट लेना रहता है ना.
Yes, sir. इसका ट्रांसपोज भी लेंगे, कॉन्जुगेट भी लेंगे, तो फिर तो यही आ जाएगा। एक बार लेके देखो, एक बार पहले ट्रांसपोज लो, कॉन्जुगेट तो यही आएगा, डायरेक्ट ट्रांसपोज ही ले लो। ट्रांसपोज लेंगे तो 1002, तो ये आ गया। ये हरमिशन बोल सकते हैं, Yes, yes. इसको हरमिशन बोल सकते हैं, राइट। और इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं, सिमेट्रिक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस बाकी बाकी तो ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं हम बहुत सारा, राइट। अब बताओ, तुम पार्टिकुलरली बता दो किसको कौन सा बताना है, बताओ। So 16 वाले में डाउट होता मेरे को। ओके चलो 16। Yes, sir. 16 देखो, के एक स्केलर है। अच्छा सर, मेरे को सब बोला कि सर वो एक मैट्रिक्स है, नहीं नहीं नहीं, मैट्रिक्स नहीं, के तो स्केलर। उसमें मेंशन नहीं था ना सर। हाँ मेंशन तो नहीं था, अच्छा। लेकिन तुमको जनरली पता होना चाहिए कि के क्या होता है, मोस्ट ऑफ सर द। Yes, sir. सर अगर मैट्रिक्स होता कि तो भी तो वो Question फॉल्स ही number होता। 15. हाँ तो भी फॉल्स होता ना, तो भी फॉल्स होता Yes, sir. यार। False हो हाँ तो भी फॉल्स Yes. होता, सर तब। हाँ क्योंकि रिवर्सल लॉ लगता है फिर वहाँ पे। ठीक है सही है सही है, चलो और बताओ। So question number 15. हाँ ये तो बहुत सिंपल है, एक बात बताओ, 2 पावर 0 क्या आएगा? So वन। 1, sir. बस खत्म, किसी भी मैट्रिक्स का पावर 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, इसको याद रखना। ट्रू। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर 23। सबसे लास्ट में 17 को डिस्कस करेंगे, दिस इज माय फेवरेट। 23 पे चलते हैं पहले। तो अभी अभी बताया ना। Unitary matrix. ये सर क्लियर हो गया है। ओके नेक्स्ट। नथिंग। ए क्यूब इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द पीरियड 2, क्योंकि ए 2 + 1 होगा। 2 log x, इसका डिफरेंशिएशन आता है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x. By x. 1 by x. 1/x का -1 by x. Log x. नहीं। Minus x. सर -1 by इसका x square. -1 1 by में x square। वही तो बोल रहा ना, वही तो बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला स्ट्रेंथ टेस्ट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली गिव। देयर इज कन्फ्यूजन, राइट। क्यों डाला है, मैं पागल थोड़ी हूँ, जानबूझ के डाला है। log x 1/x को एक साथ इसलिए डाला है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x आए, फिर तुम 1/x का इंटीग्रेशन सोच लो और log x बोल दो, राइट। So this kind of trick will be played all through the course, right? So pay attention. I already told you कि level of questions will be so deep कि someone who can think multidimensionally and practice can only be able to attempt. Okay. So please remember, बहुत बार याद करो फॉर्मूले को, बहुत बार बंद करके लिखो, है ना, so that you have crystal clarity. एक बार फॉर्मूला याद हो गया then you will have lot of confidence while solving. फॉर्मूले से ही सारा गेम है यहाँ पे। ओके ई एक्स, बाकी चलो ठीक है। ए इज अ मैट्रिक्स, देन ये बन गया होगा a बराबर p + q, देन p इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड q इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सही है गलत है? So true. False हो। फॉल्स तो सही है ये। सही है। सही। Yes, हाँ sir. देखो, वो मैंने ट्रिक किया है तुम्हारे साथ। कहीं बुक में अगर तुम पढ़ोगे तो ऐसे दिया हुआ है कि p बराबर होता है a + a ट्रांसपोज बाई 2 और q बराबर होता है a - a ट्रांसपोज बाई 2, ऐसे। पर मैं वो थोड़ी मतलब है, अगर हम एक ये बस इतना होता है कि एक किसी भी मैट्रिक्स को हमें 2 मैट्रिक्स के सम में दिखा सकते हैं, उसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो p है कि q है। आर यू गेटिंग मी? ओके सर। हाँ दैट इज़ वाई। ओके आई एम टेलिंग यू कि दिस इज गोइंग टू चेक एवरी बिट ऑफ यू, दैट इज़ वाई कि सो दिस इज ट्रू। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ skew Hermitian matrix is imaginary or zero? True, sir. True. This is So true. true. बाकी लॉन्ग आंसर टाइप था यहाँ पे। ये 30 हुआ था किसी से 30, ये बी नंबर
30. हाँ सर, हो गया सर। Yes, sir. 2 आ जाएगा सर। ओके, यस सर। इसको 2 बार गुना करने से 0 आ जाता है, यस Yes, sir. तो इसका वही नील पोटेंसी इंडेक्स 2 हो जाएगा और नील पोटेंट हो जाएगा। नील पोटेंट यही होता है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब ए स्क्वायर नहीं, ए पावर क्या सर होता है, AP सर, एन A power P P P belongs to N. natural number. and p belongs to n. Very good, if you are pointing this also out, p belongs to n, that means you are focusing. Okay, मेरे से कभी मिस हो जाए तो प्लीज पॉइंट आउट ऑल ऑफ दिस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एनीथिंग एल्स? No, sir. ओके, फिर तो यार इफ यू आर नॉट आस्किंग कि कुछ है तो आई विल कंसिडर कि यू हैव सॉल्व्ड इट. बाकी तो आई विल सी योर आंसर्स, देन आई विल टेल यू. सर एक बार 10th वाला बता दो सर, 10th वाला। ओके, so this is, I think you already enlightened us कि वो ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर वाला तुमने ही बताया था ना. यस सर, यही है। जी सर, जी सर। हाँ बस, फिर तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन दिया था ये वाला, तो ये वही तो हो गया फिर. ये यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे. आई ग्रेटर देन जे के लिए ए आई जे 0 है, तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये वाला अपर ट्रायंगुलर होगा, अपर ट्रायंगुलर. यस सर, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर। और हाँ ये वाला आपने खुद मेरे को बताया था. ओके सर, ओके सर। डन. अपर ठीक ठीक ट्रायंगुलर, सर। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर. बट देन द पॉइंट कम्स कि कौन सोच पाता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा. अगेन दैट पॉइंट कम्स. ओके, यस सर, यस। अपर ट्रायंगुलर ये सब तो सब सोच लेंगे राइट, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है राइट. यस तो सर। आपकी काबिलियत इसमें है कि यू कैन डिसाइफर व्हाट इज नॉट विजिबल क्लियरली. जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू. It is clearly written, if you see there, what is this? A square matrix. I hope you get my point. We have 8 minutes left. Anything else? 13 देख लो सर, अभी फॉल्स ही आएगा इसका ना। Yes, false. 13 is false. This is because cancellation law is not followed in matrix. Okay, I will show this to you. कहाँ गया? ये है एक्चुअली, ये डिस्कस करना है अभी, डोंट वरी. ये जो टॉपिक है अभी नहीं पढ़ाया मैंने, मे बी कल इसको पढ़ाने के बाद we'll just move to determinants, next chapter, which the 50% syllabus is already covered. Now we'll move to the next 50%, so we'll cover that. Then after that we'll be shifting in DAQs, right? You are getting DAQs based on NCERT level, right? Then you'll be getting I've already shared you the plan, right? Then you will be getting DAQs based on RD Sharma level. Then you will be getting DAQs based on NCERT exemplar level, and then finally you will getting a mock test based on NDA PYQ level. Okay, and that will bring the completion of the first chapter. Okay, clear with the plan? यस सर। Okay, so AB is equal to AC, fifth number point, does not imply B is equal to C. It does not imply. So it does not imply means cancellation law is not applicable. You cannot do that. Okay, and इस पे एक क्वेश्चन आया था ये NDA 2 2023 में कि हम इसको काट नहीं सकते ऐसे. कहाँ गया? ए और ए को ऐसे काट नहीं सकते. और इसको बता दूंगा मैं कल. इसको यू कैन जस्ट सिंपली प्रूव इट विथ अ एग्जांपल, है ना? ट्राई करना थोड़ा ऐसे Sir? बोलूँ. Sir, as you said, sir, कि in matrix the cancellation law is not applicable, but in addition of a matrix we can use cancellation law. Yes sir. एडिशन Yes sir. ए माइनस ए. ये अच्छा ऐसे रुक जा. ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. yes sir. ए हाँ
वी कैन डू दैट. यस, तो वो एडिशन है सर, वहाँ अप्लीकेबल है. दिस इज So मल्टीप्लिकेशन. in multiplication, sir, there is a one condition for cancellation law. B A B or मतलब हाँ बोलो हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो बोलो. no sir, A should be equal to non-singular matrix. Yes sir. ओके, ए शुड बी नॉन Non. सिंगुलर मैट्रिक्स. Yes sir. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फ्रेंड मीन्स डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. 0. Yes sir. It means it inverse can be possible and adjoint can be possible. Okay, see, I will tell you certain things. So there is a concept called pre-multiplication and post-multiplication. There is a concept called pre-multiplication and post-multiplication. So you can multiply both side by A inverse. You can multiply both side by A inverse. So just multiply A inverse this side also and this side also. Okay, can we do that, right? Yes, Yes sir. sir. Okay, Yes, so sir. this is called pre-multiplication. This is called pre-multiplication. So now you already know that A inverse into A is equal to what? Identity matrix. Identity matrix. Into B, and then similarly A inverse into A is identity matrix into C. So if you multiply anything with identity matrix, what you will get? I into B will be equal to So B. I B matrix. अरे B आएगा B. B. अरे दो को एक से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? So दो आता 2. है. तीन को एक से करते हो 3 आता है. So 3. बस जो मैट्रिक्स है वही आता है ना. बस वही आई को Yes, 1 के sir. तरह सोचो. आई को 1 के तरह सोचो. 1 इंटू बी बी, 1 इंटू सी सी, तो बी इजिकल टू सी आ गया. दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग मी सर, राइट? कि अगर ए नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, राइट? सो उस केस में Yes, ए sir. कैंसिलेशन लॉ अप्लीकेबल होगा और बी बराबर सी होगा. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि देर इज अ सिनेरियो, राइट? यू कैन नॉट जनरली कट इट, राइट? देखो हर Yes, वक्त sir. वो सिंगुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, राइट? इट कैन बी, सॉरी, हर वक्त वो नॉन सिंगुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना. इट कैन बी सिंगुलर ऑल्सो, राइट? सो कैंसिलेशन लॉ इन जनरल इज नॉट अप्लीकेबल, राइट? तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा कि ए इनवर्स वुड एग्जिस्ट, ए इनवर्स वुड एग्जिस्ट. ओके, सो इफ इन एनडीए यू आर आस्क्ड कि क्या ए बी इजिकल टू ए सी है तो ये हो सकता है, देन यू विल आंसर कि कैंसिलेशन लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, सो इट डज नॉट इम्प्लाई बी इजिकल टू सी, नो. Okay, but if it is given in the question that a is non-singular, then obviously b is equal to c. Are you getting me? Yes sir. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so don't worry, we'll come to this again, and this is one last thing, then we'll move to determinants. Okay, anything else? No ना? Okay, Yes. है किसी का? बोलो जल्दी. Yes sir. Okay, चलो ठीक है डन. Okay, just now give me just 5 minutes to tell you about the plans. ये क्वेश्चन था, अच्छा था, इस पे डिस्कशन हुआ था. अब तो यार वो लड़का भी अभी आया ना इस क्लास में, राइट? तो कल डिस्कस कर लेंगे. इसमें क्या दिक्कत आ गया था, ही वॉज टेलिंग मी कि, एक मिनट कहाँ गया, ही वॉज टेलिंग मी कि ये पॉसिबल है, राइट? इसमें ही वॉज टेलिंग मी कि ए पावर -2 भी आएगा तो वो सिमेट्रिक होगा. ही वॉज टेलिंग मी दैट, बट आई हैव लॉट्स ऑफ काउंटर प्रूफ्स कि जितना भी सोर्स अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी देखोगे, आरडी शर्मा देखोगे, it is clearly mentioned, you can go and check, it is clearly mentioned कि n should be natural numbers, right? And n should be positive, it is also mentioned, n should be positive integer, right? Natural भी होना चाहिए, और natural तो obviously positive होगा ही, right? तो वो mentioned है, but he did a lot of hard work and somehow proved that a power -2 is also symmetric, right? After doing lot of hard work. But then I asked him, what about a power -3? Then he still needs to reply me. Okay, ए पावर -3 का भी कोई कुछ पता नहीं है. ए पावर -4, व्हाट अबाउट ए पावर -5? और एनीवेयर गिव मी अ जनरल केस, राइट? सो ही इज़ नॉट एबल टू गिव मी अ जनरल केस, राइट? So I will have to go by the logic, है ना, go by the example that most of the books are following and most of the NCERT books are following, official sources. So we will consider that it is clearly written कि if A is symmetric, then A power n will be symmetric, sir. I repeat, only if n is a natural number. Only if n is a natural number. Okay.
So I'm closing the case at this point of time. Okay. At any other point, I will open the forum for a broad discussion, right? This can go on and on to a complex course of linear algebra, right, which are taught to second third semester student in a college setup. So please don't go that far. जितना इसमें पूछ रहा है normally उस तक limited रखते हैं. Any doubts? We'll consider n as natural. Okay. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Let us keep it at this point, and if somewhere again that boy comes, okay, we'll have some time to discuss what was the discussion, right? उसके अलावा एक और वो एडवाइस दूंगा, राइट? डो नॉट एक क्वेश्चन के पीछे कुछ ज़्यादा ही पर मत जाना, राइट? इफ़ सम वन ऑफ यू हैज़ दैट हैबिट, प्लीज़ चेंज इट. कि एक क्वेश्चन से डेस्टिनी डिसाइड नहीं होता है, राइट? अगर एनडीए का एग्ज़ाम का फिजिक्स का एक क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, राइट, दैट जस्ट मीन्स कि एक क्वेश्चन जो है वो इसलिए वहाँ डाला गया था, राइट, कि वो किसी से सॉल्व ना हो. ओके, लैंड माइन्स दैट आई टेल. So you focus on 17 that you can solve, right? You go and check UPSC result this year, right? Aditya Srivastav is the topper, and just please check how much marks he scored in prelims. You'll be surprised, right? You'll be surprised. Even UPSC topper is not solving all the questions. What are you doing? Okay, so it's not about how much questions you are solving correct, or whether you go. No, it's not about whether you are getting all the questions right or not. It's about whether you are getting maximum questions right or not. Okay, I hope you get my point. So हो गया, समझ में आ गया ना सब कुछ? Yes, sir. Okay, now please allow me just 4 more minutes. Okay, I know the time is already a lot of time. Please just allow me 4 minutes. I ask just 4 minutes of your time. एक मिनट. Okay, so this is it. Screen is visible. First, let me tell you about the batch that is now active. Okay, you can see the screen. Yes, sir. Okay, I'm not doing any kind of promotion, right? I don't want to you promote or share any of these details to anyone, right? Okay, just listen, and this is just for you. I am launching a complete GAT GS training course. It is not a normal batch, it is a training course. I do not launch batches, I launch training courses. Okay, this is for NDA, CDS, FCAT, and if you are preparing for any government exam starting from higher secondary till SSC and CAT examinations, right? It will be helpful. The batch is called the Bisons. Okay, you get certain things. Let me tell you. First of all, the batch has lifetime validity, and the content that we will be covering is complete GS official syllabus term wise coverage. When I say complete GS official syllabus, it means complete GAT official syllabus that is provided in NDA syllabus, that is provided in CDS syllabus, FCAT syllabus, and SSC syllabus. So we'll be covering all of that at one place. I will be also giving you PYQ coverage of everything, and there will be daily revision sessions, right, during the course of discussion. Every course when it starts, every class when it starts, we'll be revising. Okay, free daily, and yes, this is a very important thing that I want to give you as a gift, right? फ्री डेली vocab प्रैक्टिस, बिकॉज आई रियलाइज कि ये जो NDA वाला है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वो आता है, vocab आता है, एंटोनिम बहुत ज़्यादा आता है, सिनोनिम बहुत ज़्यादा आता है, राइट, इडियम्स बहुत ज़्यादा आता है, और उसका कुछ सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है, राइट? तो उसका एक सॉल्यूशन है कि हम उसको डेली बेसिस पे, राइट, बस एक ही सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है. देयर इज अ बुक कॉल्ड ब्लैक बुक. उसको बस बहुत बार पढ़ना है, राइट, बहुत बार पढ़ना है, लिटरली बहुत बार पढ़ना है, एंड बार बार रिकॉल करना है. इफ़ यू डू इट 2 times and if you solve NDA PYQs, you will get it correct. And if you just develop that sense of how to use options, right, okay, then you will get it correct. Okay, so free daily vocab practice. Every day I will be telling you 40 to 50 vocabs normally in a go, right, only revising in those sessions only. And quick news and CA daily updates. So usi mein I will be telling you just what are the news in defense area. Just it will all be typed. Just I will be telling you what are the highlights today, so that you just recall. Have वैसे भी current affairs ये जो NDA में उतना नहीं आता है, right? So I will just be telling you the highlights for your overall development, understanding of the current issues, so that it improves you for SSB also, right? Apart from this, I will be focusing on your English communication skills. You are already seeing what language I am using, right?
if you continue to, if you continue listening to me carefully, right? Okay, and try and, speak your heart out every time. I'll make sure you speak in that language, so you'll get very better at to express. I will also tell you the sources how I improved my English, right? And how I, developed a workman like language. एनडीए के सिलेबस में लिखा हुआ है कि यू डू नॉट नो, नीड नॉट टू नो प्रोफेशनल, शशि थरूर नहीं बनना है, राइट? वर्कमैन लाइक लैंग्वेज चाहिए, राइट? शशि थरूर वहाँ पे एसएसबी में मत बनने लगना, राइट? इफ़ यू बिकम शशि थरूर, अगर बगल वालों को नहीं समझ में आया, एसएसआर को भी नहीं समझ में आया, तो यू विल नॉट आर नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट? So simple plain language, right? Some idioms, vocabs, phrases, will do good. They use very good words, right? Idioms, right? So I will tell you the package, complete package. What are military vocabs, that are military parlance, what are they are using, right? Since I have been there, you'll see every time you go to SSB, they will use the word dejected, right? When you get conferenced out, right? Since I have 2 times conferenced out, I know they will come and they will tell you that it is no need to feel dejected. So this is one word that you can go and learn. Everybody is saying dejected means just, you feel very sad. It is called dejected. Then the officer will only be telling you only one thing, that there are people who got conference out like APJ Abdul Kalam, right? Same story repetition, right? Okay, so that is another story. I will also be focusing on improvement plus personality development, right? Okay, how you can make a personality that is less egoistic, more team, more team oriented, right? More improvement based, and more, someone who can put in honest effort. I will be particularly working on your stress handling skills, right? And to align you with Mansa, Vacha and Karmana, concept of Mansa, Vacha and Karmana, right? I'll be telling you that I'm not DIPA trained, but I have my own experiences, okay? And I will be telling you all those experiences, and obviously not OLQs but HLQs, means human like qualities, okay? Apart from this, you will getting daily tests and weekly mocks, okay? This is a complete package. I'll make sure those who do not join, regret it not joining, okay? But I will, best of luck to you. You will be surprised why the fees is just 500, okay? I know that you will be surprised, okay? But I have no choice than to keep it 500, at this point of time. Okay, I know that I have not done anything, right? No batch selections from our batch, okay? This is my first batch, okay? But then again, every expert was once a beginner, and nobody can stop me doing what I'm wanting to do, okay? So you are welcome if you want to join us, okay? The timing, class timing is 9 a.m. to 10 a.m., but it can extend to 10:30, so mark it as 9 to 10:30, okay? If you have another batch or another class which is coinciding with this timing, so please do not come. Please continue with your own class, okay? Only if you are free, you can come into this class, because this is going to be a whole training kind of session, right? Not normal that I will tell you only, okay? Apart from this, okay, just wait, I will wrap it in 3 minutes. Apart from this, the platform you will be using is Google Meet, it is mentioned. Apart from this, there is one highlight. I already told you that I am doing GAT for free, right? You'll be getting all free access to GAT GS Pro certificate course worth rupees 2500 for NDA and CDS aspirant. After 10th of October, when NDA 2024 results come out, I will launch this batch, and it will be paid one. For this course, I will be launching it for free on YouTube, right? So this GAT GS Pro certificate course, I will be putting it on YouTube, but before putting it on YouTube, I will be sharing with you only, right? You will get the exclusive access first, and then I will put it on YouTube also, right? So, and because उसके साथ जो course material वगैरह है, you will get that, okay? And then lifetime class recording access, right? So yes, अपने आपके तो efforts किसके, आपके ही होने पाएंगे, right? And I already told you that one-to-one guidance is what makes my way of teaching, our way of teaching different, okay? It is only for the smart and hard-working breed. Please do not share with anyone. Please also, you do not join if you cannot work hard. I hope कि in 2 days I have given you some taste of what is hard work looks like, okay? And I've already told you to divide your time into 4 hours to math, 4 hours to GAT, and 1 hour to SSB, and rest to the family members and everything hobbies that you are doing, okay? Make sure you have a routine, and rest I will tell you in the class, okay? Now you can ask your doubts. Yes, please. Sir, Yes. are there any recorded sessions for this batch? अरे बिल्कुल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? Okay, sir. Okay. Anyone else? सर मैथ्स के बैच की प्राइस करेगी
10 तारीख को डिसाइड करेंगे, बच्चे लोग ही डिसाइड करेंगे। ओके सर। आई विल शेयर यू, जो पहले ये पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, फिर 120 क्वेश्चंस का मॉक होगा, उसके बाद 10 तारीख को मैं पोल डालूंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि और जो मार्केट में बैच चल रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन उसका क्या प्राइस है। उसके बाद मैं आपको चॉइस दूंगा, राइट, विथ अ बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम, चूज बिटवीन ऑल ऑफ दिस, मैक्सिमम बोर्ड जिसको मिलेगा वो मैं चुन लूँगा, राइट, एंड दैट विल बी माई फीस फॉर एवर, राइट। आगे कुछ इन्फ्लेशन वगैरह हुआ तो उसके लिए एडजस्ट करेंगे, पर वही होगा नॉर्मली, ओके। बट इस फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा, ठीक है। हु सो एवर वॉन्ट्स टू ज्वाइन माई बैच, फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा। ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाला जो कोर्स रहेगा उसका फ्री एक्सेस रहेगा सबको, DAQs के लिए, और ये सब कुछ फ्री एक्सेस रहेगा। उसको करके कंप्लीट करके असाइनमेंट वगैरह सबमिट करो, और अगर इफ़ यू आर स्कोरिंग गुड देन ओनली यू विल बी गिवन बैच एक्सेस। आई डोंट वांट लेस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो ये जो 9 दिन है 10 दिन है, पुट इन एफर्ट्स, ओके, अदरवाइज यू विल लूज योर सीट, ओके। इफ आई सी यू आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स आई विल नॉट टेक यू। आगे बताओ। कोई और डाउट्स है किसी का? नो ना, ओके। सो दिस बैच फीस इज़ 500, एंड जिनको एडमिशन लेना होगा ना, इसमें एडमिशन्स आर ओपन। 9th मई को ये क्लोज हो जाएगा, और 9th मई को इसका फीस हर दिन 50 रुपये बढ़ जाएगा, याद रखना, राइट। आई विल इंक्रीज इज 50 रुपीज़ पर डे। अब उसके बाद जब भी ज्वाइन कर लो तुम, इट कैन गो टू 10,000, आई विल नॉट पुट अ लिमिट टू दिस, okay, it can go on and on and on, okay, it's up to you, okay. I know that's why I know that all the thing that you all already taken some other batch, that is why I have kept it very minimal, and I promise you that nobody is in India can give you this kind of package. And or what kind of GS I teach, what kind of physics I will teach, you can go and check on my channel. There is one video of physics also, right? You can go and check on my channel, okay. I have done my graduation in physics from University of Delhi, and physics is one of my favorite subjects, right? I've been teaching physics for the past 4 years, okay. And जहाँ से भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, है ना, जो भी कोर्स परचेज किया है, राइट, आई डोंट नो क्या, बट एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना NDA का, उसमें न्यूमेरिकल भी आता है, राइट। सो इफ़ इन योर बैच इफ़ यू आर टॉट ओनली 9th and 10th, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। You need to study 11th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल एंड 12th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल। आई हैव चेक्ड NDA 2 2024 PY, सॉरी NDA 1 2024 PYQs, उसमें फिजिक्स का जो पोर्सन था उसमें एडिशनल एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल था, आप चेक कर लो, है ना, यू कैन कन्फर्म इट। बहुत ही अजीब सा पैटर्न है NDA का। पहले तो उसने NDA 2 2023 में बिल्कुल बेसिक पूछा था, जाके चेक करना, बिल्कुल 9th और 10th का फिजिक्स पूछा था, एकदम आसान। और उसके बाद NDA 1 2024 इस बार वाला जाके देखो क्या पूछा है। He completely turned the tables around. He is asking all numericals from class 11th and 12th. मतलब that those are easy, but he is asking. Okay, that is what I am telling you. So जहाँ से भी पढ़ रहे हो, फोकस ऑन 11 12, क्योंकि 18 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन फिजिक्स का आता है, फिर केमिस्ट्री। ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूँ ना, एक मिनट रुक जा, जो कवर कर रहे होंगे, कहाँ गया, यस, इसमें देखो ये ऑर्डर रहेगा कवर करने का, यही। आई विल बी स्टार्टिंग विथ फिजिक्स, first of all 9th to 12th complete NCERT and all of these questions, also from NCERT exemplar on all PYQs. I will be focusing on numerical skill development, right, and you will be able to solve. I can clearly say you will be falling in love with physics, 100% guarantee, okay. Physics is my just I say left hand business, right, daily. Chemistry and biology, after that, okay, we have now science background, okay, so chemistry is biology, no issue. Geography is normal, ओके। हिस्ट्री बहुत पूछा जाता है, राइट, पहले ज्योग्राफी करेंगे, हिस्ट्री इज सेंसलेस देन, ओके, बट अगेन वी हैव टू स्टडी इट इन अ टोन, राइट, दैट इज प्लीजेंट टू ईयर। सो आई विल बी यूजिंग सम हिंदी एंड सम एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, एंड इट्स ऑल अबाउट रिविजन देन। पॉलिटी इज माई फेवरेट, इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज किंग मेकर फॉर यू। सो इंग्लिश इन वोकैब डेली वी आर डूइंग इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। अगर आपका वोकैब इम्प्रूव हो गया ना, और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट ये इम्प्रूव हो गया, फिर इंग्लिश का जो RC वाला पोर्सन है ये सब बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। एक इंग्लिश का वीडियो मैंने डाला भी था चैनल पे, फिर मैंने डिलीट कर दिया। इन लोगों ने जब NDA का एग्ज़ाम था तो मेरे को पहले तो मैथ का पूरा करवाया, उसके बाद इन लोगों ने बोला कि GAT का बनाओ, GAT का बनाओ, GS का बनाओ, तो एक रात पहले जाग के मैंने GAT इंग्लिश वगैरह का बनाया था। पर अगेन इतना जल्दी में अगर कुछ बनाओगे तो राइट, एवरीथिंग कुड नॉट बी कवर्ड, राइट, तो क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो आई डिलीटेड ऑल 3 hours। आई डोंट केयर, ओनली क्वालिटी। उसके बाद कुछ भी इधर उधर का चलने वाला नहीं है। डू एनीथिंग लो क्वालिटी आई विल नॉट टॉलरेट।
एंड बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स। ओके, इसका जो फीस वगैरह का बता ही दिया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे है चैनल पे। कहाँ गया? और 1 मिनट, ये रहा। इसको क्लिक कर लेना और ओपन हो जाएगा, और इसमें जो भी डिटेल्स वगैरह है भर देना। द बाइसन्स, ओके। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द कोर्स अप्लाइड टू, स्टूडेंट्स ईमेल आईडी, पेरेंट्स कॉन्टैक्ट, which exams or exams are you appearing particularly, answer this correctly so that we can customize your text. Give me order of your strong to weak subject in GS, be honest here so that we can guide and train you individually. Father's name, mother's name, name of the school, city and state. Are you hard working? और हार्ड वर्किंग नहीं है तो प्लीज़ अप्लाई मत करना, वैसे बर्बाद हो जाएंगे। एंड बाकी मेक द पेमेंट बिफोर सबमिटिंग। यस, पहले सब पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म सबमिट करना। सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन दिस नंबर, मेरा नंबर सबके पास है। यू विल बी एडेड टू द कोर्स क्लासरूम, प्लीज़ बी पेशेंट। Okay, download Google Classroom and be patient and you'll be added. And yes, this is compulsory. If you leave the course in between, I will call you a bhagora if someone runs away. Please don't apply if you cannot work hard. Okay, so all of this you think. Okay, any questions? Sir, how to make payment before submitting this form? Send me to this number na. Do Paytm or anything. This number. Sir, we don't use Paytm, sir. So tell anyone else to do Paytm. No. Somebody. If you, Yes. can you please give your account details and IFSC code so that we can transfer to you? Account details. Yeah. Okay. So I will share you the account details. Don't worry. Yeah. I'll Okay. share you the account details in this batch. Yes, sir. Thank you. Okay, then let me wind it up at this point. Okay. Thank you so much, sir, and thank you so much for joining. Please be there. Please be there.